innate nature, then I will try to look within myself. If it is external influence, then I will try to look it from outside. So that is what we are discussing in this session. So let's start with your observation. What you have noticed, what you have observed. So if anyone wants to share, you may raise your hands. Okay. Namaste भैया. Namaste, Vaya. This is भैया, Balchan. yes भैया, you can change your name here. Still, it It is is same. G. That name I have written Balchandra. Is that coming up? No, it is appearing OnePlus, मतलब your mobile OnePlus CPH 2613 something. Just trying to change that, but it's not coming. I'm using mobile. Okay, you may start भैया. I am renaming. Thank you, Gopalji. Gopalji, with the series of sessions that yesterday and day before yesterday, we were thinking about what is our natural acceptance and what is the influence of external influence. So yesterday, again the same one two events happened. Like first event was how should I do all the work of today. So first observation was I was I was added myself as a simple operation today. So we will complete the day with 1, 2, 3, 4, 5 assignments and we'll finish that. But in the middle of the day, forcibly, I got a order to move from one place to another place to attend some gathering. Uh, Not only me, with me actually we had around 50 peoples. We need to gather there. Suddenly, I started observing that many of them are rejecting, many of them are giving ideas like why they are taking us, what is the use of that. But because of my plan of day, which was already developed in the natural acceptance, uh, then I felt okay. They have forced me to some of this thing. We can participate and come. It is happening. No, that was not happening with me. So it was just I was feeling like okay, let them because they are angry with the additional thing. So let them have do that. And I was just concentrating on my natural acceptance and innate. मेरा स्वभाव पे मैं थोड़ा ध्यान दे रहा था. What should be my action or what should be my reaction towards this? So for those 50 peoples, I was just thinking like, okay, let them act according to them. So let me be in my way. I went, participated, even though it was too heavy for me. I came back at late time, and again I just felt okay. One event has happened. Let it happen because anyhow it has to be a part of the life. So it has taken up. This is how actually natural acceptance and innate nature help me to unnecessarily become angry, unnecessarily become involved in the external influence. Still, I have to discuss with them. So few words I have opened up. Okay, what to do? Lots of meaningless things are happening. Like that actually happened, but still worked on the natural acceptance and always kept myself aside from that behavior. So this was the influence with the things.
जी भैया. So important is that I am able to see whether I am with my innate nature or not. है ना? So that Yes. is important. So many people would be criticizing me, people would be appreciating me. But am I aware that my comfortability is because of my innate nature? So we will explore more in coming sessions. Mm. So once I am aware that my feelings are according to my natural acceptance, then I may interact with other people in a more precise manner. But this, uh, to start with, we are just discussing whether we are aware of our innate nature or not. And in future sessions, we will see how to handle all these things. And few things I got raised like, can we program this natural acceptance? Can we program in such a way that it will never get influenced with the external things? Is it possible? And can we program our innate nature also? Programming in the sense, can I tell my innate nature and natural acceptance to work like this only, to be like this only? Is it possible from the my uh, conditions? Where innate nature is something that is universal, that is not influenced by our environment, that is not changing with time. We just need to be aware of it. So there is no need to recondition this natural acceptance. And you cannot recondition it because it is pure. It is not bound with people, with our environment. So we need to be aware of it. And with this awareness, I can have right feeling, right thought. And with those feeling and thought, we can interact with other people. So you can condition your imagination. But as far as natural acceptance is concerned, this is pure. This is universal. That's why, irrespective of your state of mind, whenever you ask any question related to natural acceptance, you will get the same answer. It doesn't matter how preconditioned you are, but your natural acceptance is same every time. So for example, if you see many people, they are overeating, damaging their body, but whenever they ask what is naturally acceptable to me, to nurture my body or to damage my body, the answer will be same. So we are exploring a faculty that is innate in us, that is pure, that is universal. So you cannot condition that. Okay. Right, Bhaiya? But keep Yes. exploring it, Bhaiya. Huh? Keep Yes. exploring it. One more point I wanted to understand is how this natural acceptance and innate nature is connected with the self. Is it same as a self, or self is something more than the innate nature and uh, natural It acceptance? is an activity in the self. And there are many activities going on in the self. We will explore in coming sessions. Mm. But it is an activity in the self that is unaffected. Mm. So it is not beyond the self. It is in the self in terms of activity. So there are some activities in the self that are unaffected. There are few activities in the self which get affected. That we will see here in coming sessions. Oh, thank you, Gopal. जी. Okay. So we have Rajat Saxena ji with us. Namaste Rajat ji.
You can unmute yourself, Rajat ji. नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। Am I नमस्ते audible? रजत सर। जी जी। सर मेरे दो एक्सपीरियंस है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम लास्ट 3 days. आई एम नॉट अ वेरी अर्ली गेट अप पर्सन, लेट ही जी। उठता हूँ, बट लास्ट 3 days आई हैव बीन गेटिंग अप अर्ली एंड that has made me happy. Whole day I was happy. I was able to finish my work. In fact, whenever I was dealing anything, it was in my mind कि I'll be able to finish it. Because आज मेरे पास बहुत टाइम है and that actually helped whole day. I was happy finishing my tasks, whatever I was doing. I don't know, me, this was external only for me, but then whole day I was happy. Just I was doing things, completing things. I did more things, maybe because of more time. But I'm still like not able to understand whether it is external. I got up early and then everything I was doing more positively. Just distinction karna, it was difficult for me. Second thing, sir, was when you day before yesterday it was discussed about the child. When I think about child, I feel happy. Whether it is any child, I like उनके गालों को छूना, right? Maybe playing with them, and whenever like it is my child, I feel that emotion little more. किसी और बच्चे को भी देख के वही इमोशन आता है. So then I thought whether it is universally accepted. Maybe this is also external. Both of them I feel are external. But किसी और बच्चे को भी, whenever I see any other child, that time also I feel happy. It is means feeling of universal was there. I was getting a little confused. It is universal. I should be happy. I am happy. I should care for a child. That is also there, and we should actually care. So that distinction was a little difficult for me. But yes, I felt it is external. So your comments and what you will say, please help. जी रजत जी। So that's nice that you have a sense that you are happy because of some external influences. So that is important. Because if you see the feelings, like feeling of care, feeling of guidance, feeling of trust. So these feelings are person independent. I cannot say that I have a feeling of care for children, but I don't have a feeling of care for old persons. So if feelings emerging from my natural acceptance, then it would be independent of the person, independent of the body outside. So if I am focusing on my innate nature, I will have feeling of care. I will have feeling of guidance. I will have feeling of trust. And with these feelings, I will be behaving, interacting with the feelings. It doesn't matter who is with me. But if my feeling is changing with person, with age, it means I am conditioned somehow. That's why when child is there, I have one kind of conditions. Same act is being done by a young man, I may have another kind of feeling for him. So it is conditioning, my conditioning. I have conditioned myself in one manner for children. I have conditioned myself in another manner for young men, for old men, for female, for male. So that's why my feelings are changing with person. But once I am aware of my innate nature, I will have a feeling of trust. I will have a feeling of respect. Those feelings which are naturally acceptable to me. And with this Sir, feeling, I will interact with this irrespective of sir, the person outside. Ji. just a small query. Mm-hmm. If I don't feel anything, like maybe if I'm walking with someone or I don't know anyone, he's just coming, I just smile and just move away. There's no feeling like as such, मतलब कोई interaction
as such है ही नहीं, but I have mutual respect, so is it okay? Yes, Means it is okay. ये जरूरी तो नहीं कि we would feel happy or we will feel sad, बीच का भी तो हो सकता है ना. Is it right or wrong? So you check within yourself, what is this बीच का? क्या है ये बीच का? If I am not happy, if I am not happy, unhappy, then what is this? Hmm. And you want to continue this state or not? Just explore. And you have three option. You have three option. Option number one, continuity of happiness. Option number two, continuity of unhappiness. Option number three, बीच का. Now you decide yourself which one you want. Naturally. Naturally being happy. And so you can Hmm. explore. Thank you, sir. Okay, sir. Okay. Namaste, sir. Namaste, sir. जी. So we have one V Chandra ji with us. Then I will come to Abhilash Bhaiya. Sir, namaste. Namaste, sir. Namaste. Sir, namaste to all. Okay. Sir, Ji. my question is similar to the previous case. Mhm. Yesterday, I have seen one of my enemy. Immediately, my behavior was changed or irritated. I got irritation. My performance was triggered by him. So I came to this conclusion that my happiness is influenced by the external factors. Hmm. This is the thing. But what you are saying is happiness is innate nature. Ji. Yes, sir. Please, sir. Yes. So I have assumed that he is my enemy. So whenever he comes, I get triggered. Mm, So your assumption mm, is mm, triggered by his mm. presence. mm, So you are not with your innate nature. You are with your assumption. mm, That's why you are in trouble. mm. If you were with your innate nature, you would not have been troubled. Okay, sir. You think how to interact with this person with Sir. feeling of trust, with feeling of respect. Mm. But I am Sir. not with my innate nature. I am with my assumption. That's why Mhm. this is happening within me. Mm. So that's why it becomes important to be with our innate nature. Okay, sir. Right? Okay. Okay, sir. Okay, sir. Yes. And definitely he will not be making you trouble physically. Sir. You are in trouble mentally Sir. just by watching him. Okay, sir. So be with your innate nature. Okay, sir. You ask yourself what is naturally acceptable to me. Sir. So try this next time, bhaiya, and see what happens. Sure, sir. Sure, sir. Thank you. Namaste. Namaste. Namaste, Thank bhaiya. you, sir. Thank you, sir. Namaste. So we have Abhilash ji with us. Namaste, bhaiya. जी नमस्ते भैया. जी. भैया a small change if we could do in the this slide is then that 2024 is written जी जी जी. है ना, so भैया we could. I thought I should tell. Yes. Yeah, thank you, bhaiya. जी We भैया. will do it. Yes भैया. भैया I was saying that when I see it within myself, so I am able to see gradually as per the first question that now my inclination towards tasty food is getting declined, and now what happens that taste comes in mind for sure, but at the same time nutrition also comes, that is that food nutritious for my body or not. So I'm able to avoid the tasty food sometimes. I would not say every time, but sometimes I'm able to see this thing because of the morning session, because of the awareness that I have got. Talking about the music, so whenever like these days it's winter biting, cold is there in the morning, so I generally go by car.
So generally, I had the option to play the music as per my choice. But many times I chose not to play music, but to think what's happening in my imagination. So I could prioritize that thing. I could see this thing as well, Bhaiya. And talking about the next question. So we like I belong to a city Bhilwara. It is known as Textile Cities, if you are known with it. So we had a Shivir of Sham Bhaiya for 8 to 9 days. So many new people came, and now to yesterday to Sham Bhaiya came at my institution. So when new people were there, so I could see this thing that I was not having any trouble talking to them. But one more point is there because they belong to Jeevan Vidya or UHV team. So maybe I'm having a deeper acceptance for them. But if there would be some new people, there is a probability. So I'm not able to figure it out because maximum times I meet to those people only with whom I'm comfortable. Maximum times. So I'm not able to check it within myself. Yeah. So I have a question, Bhaiya. On 1st of January, we had a small workshop of Sham Bhaiya only of 3 hours for our institution's students. So there I was giving introduction of Sham Bhaiya. So when I had given the introduction, everything was done. So I thought that I could have chosen some better words to introduce him. So, but I chose normal words only because of many other problems, like time constant was there. So, but yeah, I was thinking that I need to improve myself. I need to means articulate properly. I need to rephrase. In that case, bhaiya, if we see ourselves with the self uh, evaluation, if we think that I need to improve myself, so I don't accept myself the way I am. How should we see innateness there? Like if I am not getting happiness from anybody's comment, nobody told me anything, even some were praising, some were not. That's okay. How should we see this? The mindset of growth. How should we see it with the alignment of innateness? So yeah, I want your suggestion on it, guidance on it. Thank Yes, Bhaiya. So evolution has to happen inside. है ना? So as you shared that now the priority is changing, है ना? From you. taste जी to भैया, nutrition. जी भैया, So from music to self-observation. So that priority is changing. It means जी, self-evolution is taking place in me. yes. And ultimately, we reach to the state of innate nature, our natural Hmm, acceptance. hmm, At that point, I can feel stable in myself. correct. So this evolution has to happen. Hmm, With this, now outside, my expansion has to happen. hmm, So starting from the self to family to world family. And in that case, we need to improve our skill. correct. So evolution inside and learning outside. So how to express myself, how to Correct. introduce some person so that other participants get ready to listen him. Hmm, So this learning has to happen outside, and that will vary, and that yes. needs a effort. But important is I am getting stable day by day. This is more important. Hmm, So no problem if this time we could not introduce in an effective manner. So we will do it next time. जी, So this would be learning for us. Then we can improve it next time. hmm, So expansion has to happen outside. And for that, we need to learn many skills. correct. जी भैया. जी. Thank you, भैया. I will think about it more, and if I would face any problem, I would again connect. Thank you. जी भैया. जी जी. Namaste. ओके. नमस्ते भैया. नमस्ते. Okay. So if anyone else has any sharing on this assignment throughout the day, have we observed our activities and note how often we are trying to feel good by selective eating foods or listening to music, etc. So we have Pratik Agrawal ji with us.
Hello. नमस्ते भैया। Namaste, Bhaiya. जी। Bhaiya, I want to share an observation like yesterday in night. I'm हम्म, observing my daily routine, like I am working on these activity also, and somewhere I'm observing my daily routine or my behavior. So somewhere I found like from last, it's approx because I was also part of Shambhaya Shivir, so I'm not staying at home. And after that, there are a lot of guests, so I don't have words with my family or parents. And from last 3 days, I'm working on like waking up early in morning, taking morning session, and focusing on my daily routine, like activities. But somewhere, because, or we can say somewhere, I found like I'm not spending time with my family, and that thought make me uncomfortable. Like I'm not giving time to my family, and on the other hand, as we say, like we are doing it for improving our relationship or improving as a human. So, but now from past 3 to 4 days, I have not spent my time with my family. So how we can take it like as this is the phase of working on yourself or with working on yourself as well as with the family member. So can you provide me guidance on it like? जी भैया। So I am attending workshop, है ना? So I am preparing myself how to interact with my family member with stability. So if I am devoting time here in the workshop, है ना, so I am working on myself. And once I work on myself, I will be interacting in more fulfilling manner, है ना, like Mm, feeling you are exploring in this workshop. mm, Now, with this feeling, when you will interact with your family member after a few days, your mm, relation more will be more fulfilling. You will be able mm, to respect your family members in a stable manner. You will be aware of feeling of care for your wife, for your children, है ना? And all mm, these transformations, है ना, will help your family members also. So you are working on yourself, but it is going to help your family members and ultimately to society, mm, right? So maybe for time period I am not able to interact, but whatever I am learning, it will help me to improve my relation, right? So for example, uh, when our child preparing for IIT exam, you know, for example, mm, so we confine him in a room. You just focus on your study, don't talk to anyone, and after exam you play, talk, anything you want to do. So we are not isolating that child, we are asking him to prepare yourself strongly in a focused manner. mm, And once he is prepared, he will be asset for society, he will be asset for family. And mm, in a similar manner, we are devoting our time for 8 days, 10 days, but after this exploration we will be a asset for our family, our society. So that mm. transition period we need to be, you know, aware that this is a transition period, but Okay. ultimately my growth will help to my family also, Mm. right Priya? Yes, we are. And we are, one more thing is that like yesterday I observed uh, there was birthday of my best friend. So somewhere I feel like there is a word na Vishesh. So Mm. in friendship also like I want to make him Vishesh like the moment he's sharing with me. Uh, or I want like we can spend more time together. We have 4 to 5 members in our group, but I want a feeling like we can talk something related to because we both generally talk about life and the what is going in our life. So how we can see it like in that manner, whether it is related to something like Moh and all, or otherwise it's related to communication related to life. I'm not able to find that exactly the situation.
Okay. Means you want to ask that how to communicate, है ना, with this content. Is this way? Yeah, exactly. Like we generally talk about life, like what is going in Hmm. life and what the Hmm. problem we are facing currently, because we are like 22 years old, or both only 22 to Hmm. 23. So generally we discuss the life problems. But like Hmm. yesterday we have 4 to 5 members, but suddenly in my mind I am feeling like we can talk together. We both can talk together. So I'm not focusing on any other people, but I'm just focusing on with me and his communication, something like that. So whether it is the understanding or innate nature, or it is something like attraction or more that kind of thing, I want to check that. So how can I check? Yes, Bhaiya. So that you need to check in yourself, Bhaiya, whether it is attraction, due to attraction, or due to some feeling. है ना? But the important is now we can talk solution oriented with this background of content. है ना? Mm. Earlier we would talk only problems. Exactly. है ना? Now we can guide him or her. Mm. So we can also guide him. Along with the problem, we can guide also. So this kind of communication can happen between us. Right, Bhaiya? And if it is attraction, so after few moments, you will feel gap. Mm. If it is out of your innate nature, you will not feel gap because you are feeling fulfilled within yourself. That's why you are communicating. So it will continue. Mm. Right, Bhaiya? ठीक है भैया. So I will think on it and I will check. जी जी. Thank you भैया. Okay, Bhaiya. So we have Pramod Kumari Didi with us. Namaste, Didi. Namaste, Bhaiya. जी. Bhaiya, like the thing which is being discussed, like happiness is our innate nature. So the very answer is yes, happiness is my innate nature. And here is even the willingness to establish it as a permanent quality inside. But the main distractions are like sensations from outside, as the assignment is also given here. Like when we go on living the life, like I can sit for hours without any external object, but my own thoughts lead me to distractions. Like sometimes there is the sensation that if one is not able to appreciate me, at least I am not put in negative light. Sometimes there is sensation to get responses according to my willingness or wants, like cheerfulness or proper replies, or sometimes like sensation to see people agreeing to my plans. So we have sensations to get like favorable feelings are here, and uh, sometimes when somebody disapproves, then we again get distracted. So it is about mm, like people should ask well-beingness instead of just criticizing. So I can although this from this exercise I can conclude that my happiness is not subject to like external materials or objects or like getting favorable feelings. I am complete in myself as a unit, and as far as happiness is concerned, I can it is an innate quality, but we keep on associating meanings each and every time, and that is really not aligned with right understanding and finally leads to unhappiness. So we have this right, and how to uh, just reach to this right understanding is the main question here, like how to reach this right understanding. Yes, yeah. So the way to reach this right understanding is investigation. You just investigate yourself. You just explore yourself. So whenever anyone disapproves you, you just ask yourself, now am I bound to be unhappy, or I can be happy with my innate nature? Yeah, but momentarily the triggers just lead us from out of the awareness, and it like things happen like that. Yes. So asking this question, make this as your habit. So you start when you are not disturbed. So for example,
you are sitting in a room taking tea, then just ask yourself, will it give me continuity of happiness? If answer comes no, then ask yourself, then what is my innate nature? How can I be happy all the time? You are cooking food, just ask yourself, will this tasty food can continue my happiness? When you are walking, just ask yourself. So reminding this question again and again will help you. And at a point, you will be asking this question at critical situation also. So we are not practicing it in comfortable moment. That's why I am not aware of this innate nature when uncomfortable moment comes. Right, Didi? Yes, Bhaiya. Yes, I'm getting it. Yes. So there is a saying, सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई. Yes, Bhaiya. है ना? So when we are comfortable, we don't remind all these things. Yes, When you we are are out. uncomfortable, only then we remind all these things. So we need to be aware in both the situation, when we are comfortable, when we are not comfortable. Yeah, but during comfortability, sometimes it is the awareness, but it is like we are out of the awareness after certain time. It is not all the time during comfortability. Yes. So these certain times should be expanded to all the time. Yes, Bhaiya, that When is you are comfortable, then only you would be able to be aware at critical situations. okay, Bhaiya. Right, Didi? Ji, Bhaiya. I Yes. will practice it. Okay, Bhaiya. Yes, Thank Didi. you. Thank you, Bhaiya. Yes, Didi. Namaste. Namaste, Bhaiya. Okay. Okay, so if there is no hand, we can move to the next slides. And this question answer is actually part of this process. So we are putting some proposal, we are discussing with each other, and this discussion is actually a part of this process. So each question answer gives some insight, and with those insights, we can explore ourselves in a deeper manner. So this question answer is actually a process of this morning session. So I request all of you, don't take it as a question answer. It is a process. We need to listen each question, each answer. We are helping each other through this process. So be a part of this process. So let's move towards next slide. Then I will come back to Sangeeta Shukla ji. So let me share my slides. Okay. So we discussed happiness and happiness, and I hope all of us are verifying whether this is happiness for us or not. So we need to verify every moment. So whenever we are comfortable, just ask yourself, am I happy because of these sensations, this outside environment, or am I happy because I am in a state of harmony this moment? This we need to check every time. Generally, we do all these things when we are uncomfortable, when we are unhappy. But we need to ask, we need to verify this state of harmony all the time. So when we are comfortable, just ask, am I in harmony? That's why I am happy. When you are uncomfortable, then just ask yourself, am I uncomfortable because I am not in harmony, or because of some unfavorable sensation, because of some unfavorable feeling?
So these both need to check every time. So keep verifying it. What is happiness for you? So whenever you are comfortable, just ask yourself, am I happy because of this state of harmony or some conducive environment, some good people around me? So we need to check this again and again. So we discussed this yesterday. So happiness is to be in a state of harmony, and happiness is to be forced to be in a state of contradiction. So this is happiness and unhappiness that we need to check again and again. Now we can discuss sources of happiness. So if you see sources of happiness, so one source is sensation. Let's move from bottom to top. So one source is sensation, like sound, touch, form, taste, smells. So if we try to get happiness from these sensation, it will not continue. It will give you temporary comfortability. My dependence will be on body and others if we are trying to get happy through sensation. So there is no completion point if we are trying to get happy through sensation. So continuity is not possible. So initially, things may appear tasty and necessary, but if you try again and again, for example, this example of Rasgulla. So whenever we take our favorite sweet, so initially it may appear tasty and necessary, but if you try to repeat it, then it may appear tasty but unnecessary because our body has limit. So after few quantity, our stomach gets full, but it may appear tasty but unnecessary. And if you repeat it again and again, then it will be tasteless and unnecessary. Now you will not feel any taste. And if you are, someone is forcing you to eat all the rasgulla, then it will be intolerable for you. So with sensation, initially things may appear tasty, necessary, but with time it will appear tasty, unnecessary, then tasteless, unnecessary, and finally it will be intolerable. So continuity of happiness is not possible through sensation. Then what will you do? You will change the thing. Now sweet, you will shift to namkeen. And once you start eating namkeen, the same sequence will repeat. So if we are trying to get happiness from this sensation, we will keep changing object again and again. So happiness cannot continue if we are trying with these sources, with sensation, sound, touch, form, taste, smell. Second option is source is right feeling. So for example, feeling of trust, feeling of respect, feeling of affection, care, guidance, etc. So whenever we have a feeling of trust, I will feel happy within me because these feelings are naturally acceptable to me. Whenever I have a feeling of respect, I will feel comfortable, happy. I will be in a state of harmony because these feelings are naturally acceptable to me. So if I have all these feelings, then there may be a definite completion point. Continuity is possible. But if I am trying to get these feelings from others, so I am looking a person who can trust me. I am looking a person who can respect me. I am looking those people who can guide me, who can care me, who can love me. So if I am looking these feelings from others, that is favorable feelings.
then I will depend on other, and it will give temporary relaxation to us. So there is no completion point, and continuity is not possible. And you may obsessed for few persons. So if we are expecting these feeling from others, so continuity is not possible. As the person will change, your state will change. So continuity is possible only when I have this feeling within me, feeling of trust, respect, affection. So whenever I am with my innate nature, so feeling that is naturally acceptable to me will be there. So now I will interact with feeling of trust. And it doesn't matter who is around me. So I have a feeling of trust. So I am interacting with the feeling of trust. I am interacting with the feeling of respect. Right? So this is Swatantrata. Now I am not dependent on other people for my happiness. Now I am not dependent on other object for my happiness. So this is Swatantrata. So each one of us needs Swatantrata. Swatantrata means now my happiness is not from external influence. I am able to see my potential. I am able to see my innate nature. Now I am with the feelings which are naturally acceptable to me. So this is Swatantrata. So continuity is possible with this. And it can happen with right understanding. So right understanding means understanding of harmony at all levels of being. So as we studied in UHV 2 course. So harmony in family, human being, family, society, nature, existence. So if I have understanding of harmony at all these 4 levels, with this understanding, I will be having right feeling within us. So with this right understanding, right feeling, there is a definite completion point. With this right understanding, continuity is ensured. Continuity is possible. So with right understanding, understanding of harmony at all level, I am in a state of harmony all the time. It doesn't matter who is with us. So now I am self-organized. I am organized on the basis of this understanding. Now I am interacting with others, feeling of trust, with feeling of respect, with feeling of affection, irrespective of whether the other person is able to fulfill feeling of trust or not, whether the other person is able to ensure respect with me or not. Irrespective of that, I am starting every time with feeling of trust, feeling of respect, because of my understanding, because of my right understanding. So this will lead to Swatantrata. So now I am Swatantra, self-organized. Now I am not dependent on other. So now I am happy because of my understanding, because I have understood harmony at all levels. So I am in a state of harmony. So when I am with me, I am in a state of harmony as a human being. When I am with family, I am in a state of harmony. When I am in society, I am in a state of harmony. When I am observing nature, I am in a state of harmony. So with this state of harmony, I will have a definite feelings. So now there will be no doubt whether should I start with trust or mistrust, whether should I start respect or with disrespect. There is no other option in me with this right understanding. So for myself, it is definite that I will start with feeling of trust. I will start with feeling of respect. I will start with feeling of affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude, love. So now it is definite for me. And with this, I am interacting with other people. So this can continue my happiness. But if I am expecting all this feeling from others, then happiness will not continue.
So don't assume all these things are true. Just verify it all the time. You start with feeling of trust, respect, and see what happens. You just start expecting from others all these feelings, but don't ensure these feelings within you and see what happens. So take it as a proposal and check whether with right understanding, continuity is possible or not. With right feeling, continuity is possible or not. With sensation or feeling from others, continuity is possible or not. So this verification is important. So we need to verify all the time how my continuity is possible. So that we need to verify all the time. So let me sum up this slide. Then I will come back to few questions on this slide. So simply ensuring right understanding in me can ensure a definite completion point. Definite completion point means now I am fulfilled within myself. I don't need anything from outside for my fulfillment. And with this fulfillment, now I am interacting with feeling of trust, respect, affection, care, irrespective of other is able to ensure this feeling or not. And with this feeling, I am able to evaluate sensation rightly. So I will be able to ensure, I will be able to rightly utilize all these 5 senses with my right understanding. Now these senses will not be source of my happiness. I will be rightly utilizing these senses for my growth, for the growth of body, for the growth of whole society. And all these things will be aligned with my right understanding. So this is what we need to explore all the time. We need to investigate within ourselves. So let's have few questions if anyone has. Yes. So we have Sangeeta Suklaji with us. Namaste, Didi. Bhaiya. Am I audible? Yes, Didi, yes. Ji. Bhaiya, from last 3 days, I am observing that while doing the work and I am going in opposition with the events, I clearly observe what is, I am doing, but revising the content that time itself would not correct my feeling also. So knowing the content and is something I can understand, but when you are saying the developing the right understanding, that and I could not able to understand. And second question is, when I am trying to sit down and do the exercises of this morning session, then initially nothing stops my imagination. I could not able to see. Then after 1 minute or 2 minutes or so, I observe that I am running my thoughts, and hardly I could be able to sit for 5-10 minutes. That's all. I could not able to continue as it is required. So kindly guide me, please. Ji, Didi. So whatever we are discussing is an information for you. So only information cannot sustain your happiness in continuity. This information we need to verify each time. So when we are saying
feel this happiness from right understanding can continue. So this is an information. So revising this information will not help me to continue my happiness. Now we need to explore it. So whenever you are happy, comfortable, just ask yourself, is it because of a state of harmony, or is it because of some favorable situations? Now you again ask yourself, have I understood what is harmony? So maybe concept wise, you are aware, yes, harmony means whenever my feelings, thoughts are aligned with my natural acceptance, that state is harmony. Now you observe within yourself, am I in a state? What is status of my feeling? Is it aligned with my natural acceptance or not? So if you do this work, then your happiness will continue. So each time we need to revise information. Then with this revising information, we need to verify ourselves. What is happening this time, just now? So maybe we are clear the word harmony, but am I able to see this harmony within me this time, this moment? That is important, Didi. Yes, Priya. Oh, so every time I need to question myself to ensure what is harmony. You are saying like this? What is harmony? This is one part. Am I in harmony? Am I able to see harmony within me? Okay. See, am I able to see this moment? This is important. So like feeling of trust. So whenever you ask yourself, which feeling is naturally acceptable to me, trust or mistrust? So answer will come trust. Yes. Now you ask yourself, am I having feeling of trust this time? Now question will arise, what is trust then? So you will see intention and competence. Then you ask yourself, am I able to see my intention this time? Am I able to see others' intention this time? And just observe, you are able to see or not. From words to reality, this shifting has to be done. If we are not moving from words to reality, then logically we may be clear, but it will not reflect in our living. Right? So trust is a word. Trust is a word. But we are indicating some reality. So like intention. Intention is a word. Am I able to see what intention is? Able to see what intention is. So whenever we are talking with someone, just be aware, am I able to see intention? Okay. So this kind of exploration will help you. Right. Yeah. Right, Didi? Mm-hmm. Okay, Didi. So namaste, Didi. So Namaste. Thank you, Priya. Namaste. Yes. Namaste to all. Namaste. 2 hands are raised, but it's time for morning Hindi session. So we will talk tomorrow with Balchanda ji and Balji Reddy Bhaiya. Namaste everyone. Namaste Sumil Bhaiya. Ji Bhaiya. Thank you, Gopal Bhaiya, for this enriching and enlightening session in English in the morning. Thank you, all the co-explorers, for your participation. Very with questions and sharing in the morning session, English part. So we are going to switch over to the Hindi part. Before that, we can have a look at the chat box for the regular announcements. So I hope all the co-explorers are part of the WhatsApp group of the morning session. If you are not, the link is available in the chat box. You can join the WhatsApp group. The daily assignments will be passed to us through the WhatsApp group only. You can also have a look at the previous recordings of the morning session if you missed any of the sessions, and contact the faculty volunteers for assistance. Their names and numbers are available in the chat box. The link to register for the morning session is still open, so you can share this with those who could not register so far and desirous of registering for this. The link is available in the chat box. A couple of FDPs are there in the month of January, one from 20th to 24th of January in English, introductory in English, and 27th to the 31st of January, introductory FDP, UHV in
Hindi. So you can join this and share the link to others who want to register for this. Then the students workshop will start from 6th of January, 6th to 11th of January. You can share the link to the students who want to register for this. And this is an evening program, 6 p.m. to 9 p.m. all days. So with this, I thank all the co-scholars for your participation once again, and we switch over to the Hindi part. Namaste Kumar Priya for the Hindi presentation, and Namaste Neeti Didi and team for the moderation part. Didi, over to you now. Thank you. Ji, thank you so much, Sunil Bhaiya, Gopal Bhaiya, and all participants in English part of the session. अभी हम हिंदी सत्र की शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी, सुनील भैया, गोपाल भैया, नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो इस सुबह के सत्र में हम लोगों ने अभी सुख को समझना शुरू किया है। सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो इसको हम बार बार अपने आप से पूछ रहे हैं, बार बार रेफर कर रहे हैं, तो अपने आप में देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मूल मुद्दा यही है। इसके ही स्पष्ट हो जाने के लिए हम अभी बाकी सारा अभ्यास करने वाले हैं। यदि मैं सुख को प्रभाव के रूप में लेता हूँ तो फिर मैं किस तरह से उलझता हूँ और फिर उससे कैसे बाहर निकले। यदि मैं सुख को स्वभाव के रूप में स्थापित कर पाता हूँ तो उससे क्या संभावना बनती है, इस बात को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने परसों जो असाइनमेंट लिया था उसी असाइनमेंट को कल भी लिया था, और उस पर अगर कोई जांच परख आपने की हो तो असाइनमेंट ये था कि आज पूरे दिन अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, और ध्यान दें कि कितनी बार आपके सुख की निर्भरता बाहर है। जैसे कि आप चुनिंदा खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जो आपको पसंद है या स्वादिष्ट लगते हैं, अपनी पसंद का संगीत सुन रहे हैं, आदि आदि। तो शरीर की इंद्रियों के माध्यम से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी ध्यान दें कि आप कितनी बार उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनसे आप बात करना पसंद करते हैं, दूसरे से भाव पाने के अर्थ में, और कितनी बार आप उन लोगों से बचते हैं जिनसे आप बात करके असहज होते हैं। इस अभ्यास से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, अपने निरीक्षण को नोट करें। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए अगर आपकी कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो दिन भर के अभ्यास से, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जी पवनन जी। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया अभी बहुत सारी शेयरिंग की थी तो उसमें ऐसा लगने लगा था कि सुख मेरा स्वभाव है, लेकिन जितना डेप्थ में जा रहे हैं भैया उसमें अभी यही दिख रहा है कि अभी प्रभाव के रूप में ही है। तो जो भी घटनाओं का मतलब जो भी इवैल्यूएशन अभी तक हुआ है या मैंने अपना किया है, उसका आधार जो देखता हूँ तो कोई घटनाएं होती हैं। तो घटनाओं का इवोल्यूशन हो जाता है तो उनके बारे में तो दिखने लगता है कि हाँ ये ठीक हो गया, लेकिन खुद का इवोल्यूशन अभी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। जैसे एक बात आप हमेशा कहते हैं कि दूसरे की चाहना को देखना है, तो ये चाहना वाली बात भैया पूरी नहीं दिख रही है अभी एक बना हुआ मान्यता जिसको कहेंगे प्री कंडीशनिंग, कि दूसरा ऐसे नहीं समझेगा, उसको तो समझाना ही पड़ेगा। तो ये विरोध का भाव जो है ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा बना हुआ है भैया, हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा ही दिखता है कि इसको तो समझाना ही पड़ेगा। तो और इसमें भैया एक चूक मुझे लग रही है, और एक ही जैसे ये भाव दिखता है तो फिर रिएक्शन हो जाता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, जस्ट इवोल्यूशन कर दिया कि ठीक नहीं है, और मतलब उसको एक नाम दे दिया ठीक और गलत का, और जैसे ये गलत दिखा वैसे वो छूट जाता है, फिर रिएक्शन हो जाता है। तो अभी ये शेयरिंग है भैया। तो जी भैया। बढ़िया भैया। तो अभ्यास एक में जिन स्टेप से हम गुजर रहे हैं उनको बारी बारी से बारीकी से करने से और स्पष्ट होगा। उसमें स्टेप्स पे टिकने की भी जरूरत है। ये होता है कि हम टिक कर ऑब्जर्व नहीं करते हैं और एक निष्कर्ष निकाल कर फिर आगे बढ़ते हैं, और कई बार बाहर की घटनाओं में अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखते हुए अपने निष्कर्ष को सही या गलत मान लेते हैं। तो ये बात तो ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं,
इसमें इतना ही कहूंगा कि इसको और इस ऑब्जर्वेशन को सस्टेन करें, देखें अपने आप में, देखते रहें। तो बाहर की घटनाओं से समेट कर अपनी कल्पनाशीलता को देखना, कल्पनाशीलता में विचार से समेट के भाव को देखना, ये काम हमें करना है। और भाव के पीछे भी जो हमारी मान्यता बनी हुई है उसको देखना, अपने संस्कारों को देखना और अपने आप से पूछते रहना कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है। देखें तो पूरे मानव जाति के लिए यही एक काम है, अगर बारीकी से किया जाए, कि हम अपने ध्यान को समेट कर अपने ऊपर ले आए और अपने गहरे गहरे संस्कारों को देख पाए और उसमें परिमार्जन के लिए काम कर पाए। इस काम को हम जितना सटीकता से करेंगे उतना ही सटीकता से शरीर का भी ध्यान रख पाएंगे, सुविधा का भी ध्यान रख पाएंगे, सुविधा की आवश्यकता को भी तय कर पाएंगे, संबंध में भाव को भी निश्चित कर पाएंगे, है ना? और अपने लक्ष्य को भी ठीक से तय कर पाएंगे। तो ये तो काम करते रहने की जरूरत है सतत रूप से, इसमें गहराई और बारीकी लाने की जरूरत है। बढ़िया से करते रहेंगे। नमस्ते ब्रेड, नमस्ते। तो भैया विकास दास जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी भैया, मैंने भी ये अभ्यास फिर से किया कल। तो अगर शुरुआत से लें तो कल मैं जैसे कुछ खा रहा था, डिश था, तो वो थोड़ा टेस्टी सा था, तो फिर से उसको लेने की इच्छा हो रही थी। मैंने मतलब लिया भी, उसको फिर से लिया, पर थोड़ा सा लिया। मतलब इच्छा है तो थोड़ा सा खा लेता हूँ, पर पीछे से लगता है इस बात की थी कि ये कहीं मेरे स्वास्थ्य पे नेगेटिव असर ना करे, ऐसा ध्यान में था। तो थोड़ा सा मैंने खाया उसको, और फिर इस बात को भी मैं प्रैक्टिस करता था कि ये एक पौष्टिकता का आधार है, मेरे निरंतर सुख का आधार नहीं है, पर इसमें स्वाद भी बहुत अच्छा है, ऐसा ध्यान दिया। और दूसरा, जैसे कि कल जनरली ना मुझे ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग सुनने की आदत है ना, ऐसे अच्छे अच्छे गाने, थोड़ा इस टाइप का। तो कल रात को हम लोग ऐसे संगीत संध्या रखे थे, भजन संध्या जैसे, तो भजन संध्या। आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही भैया। अच्छा, ऐसा क्या? हेलो, अभी आ रही है थोड़ी भैया? आवाज और पीछे से भी आ रही है। हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा, तो एक काम तो करते हैं भैया, मैं बाद में शेयरिंग रखूंगा, इधर थोड़ा सा शोर है। ठीक है, बाद में हाँ ठीक है, थोड़ी देर बात कर लीजिए, थोड़ा हट जाए आप हाँ वहां से तो कर लीजिएगा। हाँ भैया, फिर कल रखता हूँ, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है, बस में बैठा हूँ, तो फिर रखता हूँ। अच्छा ठीक है ना। जी जी। ठीक है, भाग्यशाली जी। भाग्यशाली जी, आपके पास माइक है। दीपक जी रामगढ़ से। नमस्ते। हाँ क्लियर है। हेलो। जी दीपक जी का प्रश्न लेते हैं दीदी, फिर आपके पास आते हैं। जी जी भैया। जी दीपक जी। मैं शेयर करूं भैया? हाँ करिए। हम्म। अ, मैं जैसे खा रहा था, मतलब मेरा टेस्टी वो खाना था। फिर मेरा मतलब पेट भर गया। बट मन में आया कि नहीं, एक्स्ट्रा मैं खा ही लेता हूँ, ठीक है ना। और वो मैंने खुद पे मतलब डिसीजन लेके एक एक्स्ट्रा खा लिया। और उसके बाद मैं देख रहा था कि मैं क्या इसका मतलब है मेरे ऊपर। तो देखा कि थोड़ा सा ओवर मतलब लग रहा था कि, है ना। तो फिर अगले दिन मैंने मतलब अ, अ, मतलब मेरा एकदम स्वादिष्ट, मेरा फेवरेट डिश था। बट मुझे भी लगा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है मेरा, क्योंकि इच्छा नहीं हो रहा है ना। तो मैंने नहीं खाया। तो ये चीज मैं देख रहा हूँ कि पहले ये ऐसा नहीं होता था। पहले मतलब क्या होता था कि अगर
नहीं मतलब नहीं भी खाने का इच्छा है फिर भी खा लेते थे, है ना। वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे अपने ऊपर। बट अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये चीज अपने आप ये मतलब निर्णय मैं ले पा रहा हूँ। उसी तरह अभी जो स्वभाव और प्रभाव वाली बात है, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि वो मतलब सच में ये स्वभाव में है। अभी क्या है कि कोई कितना भी नेगेटिव या कुछ कहीं पे गलत भी बोल रहा है या आपके तो अभी ये समझ बन चुका है कि जैसे कोई छोटा बच्चा को अगर हम गोद लेते हैं और वो आपके ऊपर टॉयलेट कर देता है, तो आप बुरा नहीं मानते हैं कि अभी उसकी समझ नहीं है कि कहाँ पे टॉयलेट करना है नहीं करना है। तो उसी तरह अभी लोग मान लो कि अपने घर पे काफी बड़े हैं और बहुत विरोध वाला बात भी कर रहे हैं। बट अभी मतलब दया वाला फीलिंग आता है कि नहीं अभी उसको समझ ही नहीं है। तो पहले रिएक्ट कर जाता था, तो अभी क्या है कि साइलेंट रहता हूँ या फिर रिस्पॉन्ड करता हूँ, है ना। अभी कल ही की बात है, एक डिस्कशन चल रहा था पॉलिटिकल में, तो वो सभी एकदम मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि वो बिना मतलब उनका गलत है पॉइंट, और अभी बोलना भी सही नहीं है। तो बस मैं साइलेंट होके ऑब्जर्व कर रहा था। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ये सारा डिफरेंस मैं अपने आप में देख पा रहा हूँ भैया, वही शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, बढ़िया। सो कंटिन्यू करें। उसमें भी और जाकर अपने आप से पूछे, जैसे पहले आपने उदाहरण लिया कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, क्यों खा लिया, हम्म हम्म अपने अंदर भय क्या है। कई बार ऐसा हो सकता है कि अभी आप भोजन ले रहे हैं, फिर एक लंबे काम पे निकल रहे हैं और निश्चित नहीं है कि अगला भोजन समय से मिल पाएगा कि नहीं, ये हम्म। भाव था, है ना। या फिर स्वाद के लिए आप खा रहे थे और एक्स्ट्रा खा लिया। तो ऐसे ना अपने आप से उन प्रश्नों को करें, तो उसके पीछे का भाव दिखाई देगा। जी भैया, एक चीज हाँ, और शेयर या करना फिर चाह दूसरी रहे थे घटना भैया। में भी अपने प्रश्न को करेंगे, तो उसके पीछे का और भाव स्पष्ट होगा आपको। हाँ, ठीक है, ठीक है भैया। थैंक यू भैया। हाँ। अपने को गलत या सही कहना मुख्य मुद्दा नहीं है, मूल्यांकन करेंगे। बट मुख्य मुद्दा है कि मेरा सहज स्वीकृत भाव क्या है, वो हमको दिखाई दे। अगर ये ठीक नहीं लग रहा, अगर अपने आचरण में कमी लगी, तो वहां पे सही आचरण क्या होता है, इसको देख पाना। जी भैया, थैंक यू। बढ़िया। भाग्यशाली जी, हाँ, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया मुझे ये समझना है, जो शब्द हम अभी यूज कर रहे हैं सुख और स्वभाव, इसको थोड़ा समझना था। और दूसरा, जैसे मैं ये वेरीफाई कर रही थी कि मैं आराम में हूँ तो ये मेरे स्वभाव की वजह से है या परिस्थिति अनुकूल है अभी, इस वजह से वो मैं आराम की स्थिति में बनी हुई हूँ। तो इसको थोड़ा देख रही थी 2-3 दिनों से। तो थोड़ी बहुत कभी कुछ परिस्थिति में होता है अप डाउन, तो थोड़ी हद तक तो फिर भी बाहर तो एक्सप्रेशन में नहीं आता है, बट अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना हो जाता है। तो इसको मैं कैसे समझूं कि मेरी जो अभी आराम की स्थिति है ये मेरे स्वभाव की वजह से है या परिस्थिति अनुकूल होने की वजह से है? तो इसको थोड़ा समझना था जी। जी, तो अभी अगर स्वभाव की स्थिति होगी, तो सही समझ सही भाव के आधार पर होगी। और सही समझ सही भाव अगर सुनिश्चित नहीं हुआ है, तो कोई अनुकूल प्रभाव ही है। तो ये है कि बाहर की परिस्थितियां ठीक चल रही हैं, ठीक। और उसमें भी क्या है, तुलनात्मक रूप से पहले बिगड़ी हुई थी फॉर एग्जाम्पल, अब उससे बेहतर हो गई, तो हमें राहत मिलती है। उस राहत को हम कंफर्ट कहते हैं, आराम कहते हैं। तो होता ये है कि मान लीजिए कुछ प्रतिकूल परिस्थिति बन गई परिवार में, वर्क प्लेस पे, और वो रिजॉल्व हो गया किसी तरह, तो उसके बाद जो हमको थोड़ा आराम मिलता है, तो हमको लगता है कि अब मैं अपने आप से सुखी हूँ। ऐसा नहीं है। अपने आप से सुखी होंगे तो मेरे अंदर सही भाव दिखाई देगा, सही समझ दिखाई देगी। तो काम हो सकता है कि ड्यू है, बाहर जितना उथल पुथल चल रहा था वो कम हो गया।
तो इतना हो सकता है। तो फिर उसको और ठीक से एक्सप्लोर करेंगे अपने अंदर, है ना। अगर हमने कुछ समझा भी है तो क्या समझा है, समझने के लिए कुछ शेष है, उसमें भी समझ थोड़ी आगे की बात हो जाती है, तो भाव के स्तर पे देख लेंगे कि क्या उस व्यक्ति के प्रति जिससे मैं परेशान हो रहा था, मेरा भाव संबंध का बना हुआ है। जिस परिस्थिति में मैं परेशान हो रही थी, क्या उसमें मुझे व्यवस्था का भाव दिखाई दे रहा है? तो हो सकता है अभी नहीं दिखाई दे रहा, है ना। परंतु यह है कि जो व्यतिरेक थे बाहर, जो उथल पुथल थी, जो अशांति थी, वो कम हो गई। तो अभी आप ठीक से देखेंगे, अब वो थोड़ी सी बात हो जाती है कि, है ना, मुश्किल लग सकता है। तो आप पाएंगे कि अभी हम या तो समस्याओं से परेशान होते हैं, या समस्याएं कम हो जाती हैं तो रिलेटिवली आराम पाते हैं। ये रिलेटिव आराम पाने को हम अभी सुख कह देते हैं। जब सुख स्वभाव के रूप में होता है तो हमें चीजें स्पष्ट होती है, चीजें दिखाई देती हैं, उसमें फिर लेश मात्र भी हमें बाहर से कुछ पाकर सुखी होने की आशा नहीं रहती, बट वो थोड़ी आगे की स्थिति हो सकती है। तो अभी तो हम रिलेटिवली जो आराम पाते हैं उसी को सुख कहते हैं। तो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है ना। कभी उथल पुथल होता है, कभी डिस्कम्फर्ट होता है, कभी अशांति होती है, कभी विरोध बढ़ जाता है, और रिलेटिवली आराम पा लेते हैं बीच बीच में कि हाँ भाई चलो आज कम से कम जिस व्यक्ति से मेरा नहीं बनता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, आज वो घर में नहीं है, तो भाई आज तो हम सुखी रहेंगे। तो ये तुलनात्मक रूप से जो हम आराम पाते हैं ना, उसको अभी हम सुख कह देते हैं, अगर बहुत ठीक से क्वालिफाई किया जाए। जी जी भैया। भैया ये दो शब्दों के अर्थ में अगर मैं जाऊं थोड़ा और गहरे में, तो इसको कैसे जी, समझ सकते हैं? दो शब्दों के कौन से? सुख और स्वभाव। देखिए, स्वभाव का मतलब हुआ कि उसको हम लोगों ने थोड़ा एक शब्द में रखने का प्रयास किया ताकि कम शब्दों में बात चली जाए और ठीक से बैठ जाए अपने अंदर। हम्म। तो स्वभाव का तो अगर अर्थ देखें तो ये स्वयं स्वीकृत भाव। तो सुख स्वभाव जब कह रहे हैं तो उसमें हम कह रहे हैं कि स्वीकृत भी है और स्थापित भी है। तो सुख का जो स्रोत है मेरे अंदर स्थापित है, तो स्वभाव का मतलब हुआ कि स्रोत मेरे अंदर स्थापित है। सुख मतलब हुआ हार्मनी, जिस पर भी हम लोग बात करेंगे भी। तो क्या हार्मनी मेरे अंदर स्थापित है? तो मेरे अंदर स्थापित होना मेरा स्वभाव हो गया, अब मैं ऐसा ही हूँ, है ना। इनफैक्ट उसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी सहज स्वीकृत भाव है, अब मैं ऐसा हो गया। तो अगर स्वभाव को सहज स्वीकृत भाव कहें तो हर एक के अंदर वही है, सबकी सहज स्वीकृति वही है। परंतु थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट लिया इस बात को संक्षेप में रखने के लिए कि सहज स्वीकृति सबके अंदर वही है, अब मेरे अंदर स्थापित भी हो गया है। जो सहज स्वीकृत है वही स्थिति मेरे अंदर बनी रहती है। तब कहा कि स्वभाव हुआ। तो सुख का स्रोत मेरे भीतर स्थापित है, तो सुख स्वभाव बना। अगर भीतर स्थापित नहीं है, बाहर से कुछ जुटाकर सुखी होना पड़ता है, और जिसको ठीक से कहें तो रिलेटिवली आराम पाते हैं बाहर से कुछ जुटाकर, तो स्वभाव के ऊपर स्थापित नहीं है। इतनी बात है। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं इसको एक्सप्लोर करती हूँ। जी। बढ़िया दीदी। नीरजा जी। नीरजा जी। रश्मि त्रिपाठी जी, नमस्ते। शेयर करना चाहेंगे कि जैसे हमने ये महसूस करने की कोशिश की कि हम कितना दूसरों पे निर्भर हैं। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक जगह हम अफेक्टेड हो गए। जैसे कि हम गए, हमने किसी से बात करना, बहुत दिन बाद मिले, बात करनी चाहिए, लेकिन उनका जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत पॉजिटिव नहीं थी। उन्होंने अच्छे से बात नहीं की, तो उसने मेरे मन को काफी डिस्टर्ब कर दिया और हमें अच्छा नहीं लगा। फिर हम उनको अवॉइड करके चले गए।
वो जैसे दोबारा मिली तो फिर उनको देख के एक असहजता सी आ गई हमारे व्यवहार में। ये मैंने महसूस किया। लेकिन हमें ये लगा कि क्योंकि हमने भैया 11th बैच जो था उसको भी अटेंड किया था, तो हमने उस समय काफी प्रैक्टिस किया था इस चीज को, और हम काफी ओवरकम कर लेते थे सिचुएशन को। लेकिन कल उस हिसाब से नहीं कर पाए। तो भैया क्या कमी रह गई, इसको कैसे वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे कि ये बिल्कुल स्थापित हो जाए हमारे अंदर। जी, तो इस पे जो बात पहले दिन भी हुई थी, है ना, उसको मैं जी अभी फिर से रख देता हूँ और उस पे हम लोग काम करते रहेंगे। ठीक है ना। जी तो एक तो स्वयं को चैतन्य इकाई के रूप में देखना, मैं के रूप में देखना, उसी प्रकार से दूसरे को भी देखना। ठीक। फिर स्वयं जी। में ये देख पाना कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ या नहीं। हम्म फिर ये देख पाना कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है कि नहीं। हम्म ठीक। ये तीन बातों को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें अगले व्यक्ति के व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगले व्यक्ति का भैया कॉम्पिटेंस कम होगा तो कर पाएगा, भैया मेरा इसको कॉम्पिटेंस। थोड़ा सा जी। और समझा दीजिए। जी। इसको थोड़ा सा और इस पे समझा दीजिए, इसको मुझे समझ नहीं आ रही है। हाँ, इस पे बात करेंगे। तो जी मानव को देखें तो मैं और शरीर, जी दो वास्तविकताओं जी का सहअस्तित्व है, यानी जी चैतन्य और जड़। जी तो मैं चैतन्य इकाई हूँ, एक जड़ शरीर मेरे साथ है। दूसरा भी एक चैतन्य इकाई है, जड़ शरीर उसके साथ है। तो हम जब संबंध को अब देखते हैं स्पष्टता के साथ, तो चैतन्य से चैतन्य का संबंध देख पाते हैं। तो अभी हम जब संबंध को देखने भी जाते हैं तो बहुत ही ग्रॉस लेवल पे देखते हैं, जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं उस लेवल पे देखते हैं। तो जिसमें उसका शरीर, सुविधा, उसका बोलचाल, भाषा, है ना, और ये सारी चीजें इनके स्तर पे देखते हैं। तो बहुत चीजें क्लियर नहीं होती हमें। फिर हम चाहना को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। तो अगर हम चैतन्य इकाई के रूप में देख पाते हैं स्वयं को भी और दूसरे व्यक्ति को भी, तो जाकर फिर हम वहां पे सहज स्वीकृति को भी ठीक से एक्सप्लोर कर पाते हैं, कि अपने आप से पूछ पाते हैं कि मैं दूसरे को एसेंशियली सुखी करना चाहती हूँ या दुखी करना चाहती हूँ। तो ये बात कई बार हम स्किप कर जाते हैं। हम चैतन्य को नहीं देख पाते, मैं क्या चाहती हूँ ये भी नहीं देख पाते, और दूसरा जो कुछ कर रहा है, जैसे आपने अच्छे से बात करना चाहा और उसने अच्छे से बात नहीं किया, तो उसने जो निर्वाह किया उस पर हमारा ध्यान टिक गया, ये तीन बातें छूट गई। और फिर उससे हम डिस्टर्ब इसलिए हुए क्योंकि वहां पे उसका हमने एक मूल्यांकन जो किया कि मुझे अवॉइड करना चाहता है, मुझसे ठीक से बात करनी चाहता है, या फिर, है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ऐसे हमने मान लिया कुछ निष्कर्ष निकाल लिए। अब उसके बाद वो हमारी कल्पनाशीलता को प्रभावित कर गया। बट ये तीन बातें अगर मुझे पहले से स्पष्ट रहती तो मैं सिर्फ उस व्यक्ति के प्रति, ये मतलब उस व्यक्ति से सिर्फ प्रभावित हो जाऊं ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत ही जनरल फॉर्म में चीजें दिखाई देती हैं। तो चैतन्य इकाइयों का अपना एक संस्कार है, मैं का अपना एक संस्कार है, उसके साथ वो आचरण कर रहा है, मैं भी ऐसी करती हूँ, अगला व्यक्ति भी ऐसी करता है। हो सकता है जिस व्यक्ति से बात करके आपको सुख नहीं मिला, ऐसे अनेक व्यक्ति होंगे जिनको आपसे बात करके सुख नहीं मिला। अब मान लीजिए हम किसी चीज में उलझे हुए हैं, उसी घटना में लें, उस व्यक्ति से बात करके आपको अच्छा नहीं लगा। ठीक, हो सकता है आपकी कल्पनाशीलता में परेशानी तैयार हो गई, है ना, कोई मूड ऑफ हो गया जिसे कहते हैं। आप 15-20 मिनट आप उसी मूड में रहे, उस बीच जो भी आपसे इंटरेक्ट किया उससे आपने ठीक से इंटरेक्ट नहीं किया। अब उस व्यक्ति को तो पता नहीं है कि पहले व्यक्ति से बात करके आपका मूड ऑफ हुआ है ना, उसके कारण ऐसा हो रहा है। अब वो तो यही देखेगा जी जो आपने व्यवहार किया, कि देखो ये रश्मि जी हैं, इनसे बात जी करो और ठीक से बात करती नहीं है। अब वो नया सीक्वेंस शुरू हो गया। तो जी आपको किसी पहले व्यक्ति की बात ठीक नहीं लगी, उससे आपका जी मूड ऑफ हो गया। अब आपके मूड ऑफ के समय किसी ने आपसे इंटरेक्ट किया, उसका मूड ऑफ हो गया। अब उससे किसी ने इंटरेक्ट किया, उसका मूड ऑफ हो गया, चल रहा है। तो हम प्रभावित हो गए। प्रभावित होकर हमने जी अपना जो व्यवहार है उसका मूल्यांकन नहीं किया। अब तो हम सब कुछ जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे कोई आपसे उस समय भी आकर कहे कि भाई आपने ठीक से बात नहीं किया, तो आपको दिखता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ इस समय। उस समय मुझे ही इतना दुख लग रहा था, बुरा लग रहा था कि अगले व्यक्ति में कहाँ ध्यान रख पाऊंगी। अब ये बात हम अगले के लिए नहीं देख पाते।
तो हम अपने आप को हेल्पलेस मानकर किसी पॉइंट पे जस्टिफाई कर ले जाते हैं, भाई मैं हेल्पलेस हूँ इस पॉइंट पे, ठीक। बट अगला व्यक्ति भी हेल्पलेस है अपने संस्कारों के कारण, ये बात हम नहीं देख पाते। जी भैया। ठीक है। और भैया जो आपसे दूसरा प्रश्न था इसका कि जैसे हमने प्रैक्टिस किया था इस चीज को बहुत पहले, मतलब 11th बैच में जब थे हम, सितंबर जी से जो अटेंड किया था, तो उस समय हम इसको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करने लग गए थे। लेकिन अब जैसे मैंने कल इस चीज को नोटिस किया, तो मुझे लगा कि ये चीजें बिल्कुल नई सी फील हुई हमको। तो हमको इसको पूरी तरह से इस्टेब्लिश करने में के लिए क्या करना होगा? क्योंकि इसीलिए हमको वो बैच आखिरी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमको कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, तो देखिए छोड़ने से तो नहीं बनेगा, ये एक अभ्यास है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कल्पनाशीलता का बहुत सारा अभ्यास है। जैसे कहते हैं ना कि जब कच्ची सड़क पे बैलगाड़ी गुजरती है तो पहिए के खांचे बन जाते हैं। अब वो सड़क पक्की हो जाती है थोड़े समय बाद, मतलब वो सूखी हो जाती है। अब वो जी खांचे मगर बने रहते हैं, तो जब भी अगली जी बार बैलगाड़ी गुजरती है उन्हीं खांचों में फंस जाती है। जी तो ऐसे ही हमारी कल्पनाशीलता का बहुत सारा अभ्यास है हमारे संस्कारों के आधार पर, तो जी उनसे उभरने में समय लगता है। तो जो अभ्यास 1 और 2 हम कर जी रहे हैं उसको सतत अपने अंदर करते रहने की जरूरत है, जी ये तो वापस हम उन्हीं खांचों में चले जी जाते हैं। तो ये हो जी सकता है कि सामयिक रूप से हमें राहत मिल जाए, थोड़ा जी ऑब्जर्वेशन शार्प हो जाए, थोड़ा आराम जी मिलने लगे, है ना। परंतु सस्टेन नहीं होगा जी क्योंकि उसके मूल में जो करने वाला काम है अभी हुआ नहीं। तो जी रिलेटिवली हम ज्यादा आराम पा गए, ठीक है ना, अपने जी ऊपर थोड़ा ध्यान देकर या कुछ चीजों का मूल्यांकन जी करके या कुछ चीजों से बचकर। जी बट उससे हमारे अंदर समझ इंश्योर हो गया, भाव इंश्योर हो गया, ऐसा है नहीं। जी तो इसलिए इसको अपने आप में सस्टेन करने के लिए, है ना, इसमें अपने आप को लगाए रखने की जरूरत होती है। और जी ये भी ध्यान दें कि जिन चीजों में हम उलझ जाते हैं उनका भी हम मूल्यांकन कर लें जी और उनसे अपने आप को थोड़ा सा हटा के रखें। जैसे हमको पता है कि हाँ इन चीजों में हम उलझ जाते हैं, जी तो अभी थोड़े समय के लिए उसको हटा दें। जैसे हम किसी बात से प्रभावित होते हैं बहुत ज्यादा, तो और फिर अपना मूल्यांकन करें ठीक से, ताकि हमारा ये अभ्यास पुष्ट होता रहे। जी 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 थैंक यू भैया। बढ़िया है जी। जी कुछ और हैंड्स रेज्ड हैं चंद्रशेखर जी और नीरजा जी के, बट ऐसा करते हैं कंटेंट को थोड़ा आगे लेके चलते हैं फिर चर्चा करेंगे। जी दीदी। तो बढ़िया, इसमें ही बात हो रही है कि सुख के आ, दो स्रोत अभी हम मान के चलते हैं और उनसे ही हम सुखी होने में लगे रहते हैं। एक तो शरीर से मिलने वाले अनुकूल संवेदना और दूसरा दूसरे से मिलने वाला अनुकूल भाव। इस पे काफी सारा शेयरिंग हुआ, एक्सप्लोरेशन हुआ, इसको हम लोग करते रहेंगे। अगर अभ्यास 1 और 2 को देखें तो उसके मूल में भी इतनी ही बात है कि बाहर से कुछ आता है उससे हम प्रभावित होते हैं और भीतर जो कुछ है वो मान्यताओं के आधार पर चल रहा होता है। उन दोनों के योग संयोग में हमारा सुख नहीं बन पाता। जी बढ़िया जी। तो करने का काम ये है कि अपने में जांच परख किया जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए उसमें, जिसको कहा सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्वयं में जांच परख। तो पहला बात तो उसमें यह है कि जो प्रस्ताव है उसको सुना जाए और उसमें कई बार आपका प्रश्न से ये बात और स्पष्ट होती है कि अल्टीमेटली कहा क्या जा रहा है। तो शब्द मेरे पास आते हैं, बट थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, शब्द मेरे पास आते हैं, उन शब्दों को मैं अर्थ जो देता हूँ किसी सेशन को सुनते हुए, सुबह के सत्र को सुनते हुए, मीटिंग में कोई बात सुनते हुए, तो उसमें मेरा अपना बहुत सारा संस्कार जुड़ा होता है। उस शब्द से जो हमने कॉनोटेशन, जो मीनिंग, जो अर्थ निकाले हुए पहले, उसको हम ले आते हैं और उसे अपने आप में उसको अपने कल्पनाशीलता में फैला लेते हैं। तो उसको ठीक से सुनना, ये 2 वाक्यों के बीच में जो बात है उसको ठीक से सुनना, 2 शब्दों के बीच में जो अर्थ है उसको ठीक से देख पाना, तो प्रस्ताव को ठीक से सुनना ये बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि हम प्रस्ताव को जब पहली बार सुन रहे होते हैं तो हम अपनी मान्यताओं से जोड़कर उसको अर्थ दे रहे होते हैं। ये एक सामान्य घटना है, वर्कशॉप में हम सबके साथ होता है। तो उसको अपनी मान्यताओं से जोड़कर अर्थ दे रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे जब बात स्पष्ट होने लगती है
तो फिर हम सुनना रोक लेते हैं या कम कर देते हैं, और हम ये सोचना शुरू करते हैं कि अगर मुझे ये बात रखनी हो तो मैं कैसे रखूंगा। ये सामान्य सी कठिनाई होती है हम सभी लोग जो इस पूरे कार्यक्रम में लगे भी हुए हैं उनके साथ, कि एक पॉइंट पे हम उसको अपने ढंग से अर्थ दे रहे होते हैं, और जब थोड़े अर्थ स्पष्ट होने लगते हैं तो हम ये विचार करना शुरू करते हैं कि यही बात मुझे रखनी हो तो मैं कैसे रखूंगा। तो मैं फिर उस बात को रखने की शैली, उसके है ना तरीके, उस पर शिफ्ट हो जाता हूँ। देखना अभी भी शेष रह गया, पहले भाग में इसलिए शेष रह गया क्योंकि हमने अपने ढंग से अर्थ दे दिया तो दिखना नहीं हुआ। ठीक, बट ये जीते हुए और बहुत सारे संवाद करते हुए थोड़ा अर्थ स्पष्ट होना शुरू हुआ, तो फिर मैं वहां शिफ्ट हो गया कि मुझे बात रखनी है तो मैं कैसे रखूंगा, या इस बात को मैं भी ऐसे ही रखूंगा। तो इन सब में क्या हुआ अल्टीमेटली कि प्रस्ताव का ठीक से सुनना नहीं हो पाया, उसके भीतर जाना नहीं हो पाया। ये एक सामान्य सी रुकावट है। तो एक तो प्रस्ताव को ठीक से सुनना, दूसरा उसको जांचना अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर। जब जांचने जाएंगे ना तो आप पाएंगे उस प्रस्ताव के और बारीकियों में आप जाते हैं, उस शब्द का, उन वाक्यों का जो इंटरकनेक्शन है रियलिटी से और बाकी रियलिटी से, उस पर आप ठीक से एक्सप्लोरेशन करते हैं, और अपने आप में सहज स्वीकृति आपको और स्पष्ट होने लगती है। आपके अंदर एक आश्वस्ति बनने लगती है कि कोई ऐसी चीज है मेरे अंदर जिसके आधार पर मैं सही को समझ सकता हूँ, समझा जा सकता है। चीजों को मानकर जीने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझा जा सकता है। तो अपने अंदर सहज स्वीकृति के आधार पर जांचना, और दूसरा फिर तीसरी बात हो जाएगी जी कर देखना। और जितना फैल के जी के देखेंगे है ना, उतने आपके मूल्यांकन के अवसर बढ़ेंगे। जब जी कर देखते हैं तो भागीदारी करना, तो हम सबके लिए अपने एक्सप्लोरेशन में, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, अपने विकास में एक एसेंशियल पार्ट है कि प्रस्ताव को ठीक से सुनना, फिर उसको अपने अंदर जांचना और अपनी सह स्वीकृति को देख पाना, पकड़ना उसको कि सह स्वीकृति क्या है, और फिर जी कर देखने के क्रम में और फैल कर जीना, ताकि जितने भी लेवल से हमारे जीने के, व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, प्रकृति है, इनमें से हर एक स्तर पर हम फैल के जिए। कैसे जिएंगे? भागीदारी करते हुए। तो उन्होंने पाया कि जो साथी भागीदारी को आगे बढ़कर करते हैं, जिम्मेदारियां लेते हैं, उनकी गति बनती चली जाती है, क्योंकि जांचने के अवसर बढ़ जाते हैं, जी कर देखने के अवसर बढ़ जाते हैं। एक टीम के रूप में काम कर रहे होते हैं तो है ना, समाज के किसी समाज आधारित कार्यक्रम को आगे लेके चल रहे होते हैं, तो फिर जी कर देखना। तो परिवार के वही 4-6 लोग के साथ हम जी जी के देख रहे होते हैं, तो हमारी एक्सप्लोरेशन की एक सीमा बन जाती है। बट हम जब उसको फैल के जीते हैं तो मानव के साथ भी हमारा अल्टीमेटली वह सुख हो पा रहा है कि नहीं, नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा, ये हम देख पाते हैं। तो अपने गहरे गहरे संस्कार हमको दिखाई देते हैं, है ना, और आगे का योजना कार्यक्रम भी दिखाई देता है कि मैं भी समझ सकता हूँ, अगला व्यक्ति भी कैसे समझ सकता है। प्रकृति को लेकर बहुत सारी जो शंकाएं हैं हमारे अंदर, बहुत सारे प्रश्न बने रहते हैं, दुविधाएं रहती हैं, उस पर भी हम समाधान कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है ना, इससे अगर हम चलते हैं तो समय के साथ मैं कहूँगा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो धीरे धीरे के बजाय मैं कहूँगा एक सतत प्रक्रिया है। अगर हमारी इच्छा इतनी बलवती हो गई है, मुझे लगता है कि यही मेरा कार्यक्रम है, तो दिखने लगता है। अगर इच्छा इतनी बलवती नहीं हुई है, नहीं दिखता है कि यही मेरा कार्यक्रम है, और भी कुछ कार्यक्रम है जिनसे सुख मिल सकता है, तो मैं उसमें फिर काम करता हूँ, उसमें लगा रहता हूँ। जी, ये प्रस्ताव स्पष्ट है। ये जो बात कही जा रही है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, तो 3 बातें हमने कही। एक तो प्रस्ताव को ठीक से स्पष्ट कर पाना, अपने आप में ही कहा क्या जा रहा है। दूसरा, उसको स्वयं में जांच पाना अपनी साहस स्वीकृति के आधार पर। और तीसरा, जी कर देख पाना। जी, चंद्रशेखर जी। नीरजा जी। हेलो। जी, जी भैया नमस्ते। नमस्ते। आपकी जो बात है वो मैं उसमें ही अभी आजकल तो इसी एक्सप्लोरेशन में ही लगी हुई हूँ।
तो जो मैंने आपसे परसों कहा था कि एक कलीग 2-3 कलीग हैं, उनके साथ ये होता है कि आई रियली अवॉइड देम। तो मैं अभी कल इसी चीज़ को सोच रही थी कि मुझे उन्हें अवॉइड क्यों करना है? साथ में काम करना है, ठीक है। उनकी जो सोच है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब अगर वो शायद उनके हिसाब से वही सही है। तो लेकिन एक मेरा यहाँ प्रश्न ये है कि जब हम एक सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, तो और जो सामने वाला कह रहा है वो हमें समझ में आ रहा है सिस्टम के लिए गलत है और वो हम उसे कोई लड़ नहीं रहे हैं, उसे समझाना चाह रहे हैं कि देखो अगर हम ऐसा करें तो। क्योंकि यहाँ पर वो भी अपनी बात रखे। हो सकता है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही सही हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। लेकिन यहाँ बातचीत से तो हम उसको समझा सकते हैं ना। लेकिन अगर सामने वाला बात ही करने के लिए तैयार ना हो तब क्या करें भैया? हाँ, तो हम ये देख लेंगे कि पहली बात तो जो लोग बात करने को तैयार हैं उनसे हम क्या बात कर रहे हैं, पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो जिन लोगों से हमारी बातचीत हो पाती, संवाद हो पाता है, उनको हम जी, समझ संबंध इन मुद्दों पे बात करते हैं, सही जी, समझ सही भाव के अर्थ में बात करते हैं, या फिर हमारी बातचीत कुछ अन्यथा होती है। इसको एक्सप्लोर करें। तो जिन लोग से बात नहीं हो पाती है उनको अभी सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। जिनसे बात हो पाती है उनसे हमारी बातचीत क्या होती है। नहीं भैया तो जैसे यहाँ ये पे है आप कि देखेंगे कि हो जब सकता है हम यहाँ पे भी हम। सिस्टम के जी। जब हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं और हम एक प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं और वहां पर आपके सामने वाले की बात ना करने की वजह से कुछ काम रुक रहे हैं और वो आप समझाने की कोशिश करें या बात करने ना, समझाना नहीं है, सिर्फ बात करना है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो ये सही है सिस्टम के लिए। लेकिन सामने वाला बात ही नहीं करना चाहता और सही में काम रुक रहे हैं, तो जी। उस सिचुएशन में हम अवॉइड भी नहीं कर सकते सामने वाले को। मतलब वही मैं आपसे कह रही थी कि मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसने सुनना ही नहीं है सामने वाले ने और काम रुक रहा है। तो मैंने कहा कि मैं दुखी हूँ, मेरे को गुस्सा है, इससे अच्छा है कि मैं अवॉइड करूँ। ठीक है, नहीं काम हो रहा है तो देखेंगे फिर, यही होता है। देखा जाएगा बाद में जब पूछेंगे ऊपर वाले कि भैया ये क्यों नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशंस में अवॉइड करते हैं कि भाई ठीक है जाने दो, क्या करें, नहीं सुनना तुमने। लेकिन वही कि जब पता है कि सामने पड़ेंगे तो देखिए मेरा कोई ऐसा मजबूरी तो है नहीं कि घर में तो साथ में लोग रहते नहीं है कि भैया बात करे बिना चलेगा नहीं। ऑफिस में है ठीक है, नहीं बात करेंगे तो इसलिए अवॉइड करते हैं। वही यहाँ पर भी है कि मैं अपने आप को सुखी, अपने आप को शांत रखने के लिए अवॉइड करती हूँ। बस ये जी, होता है इसको वहां थोड़ा पर। सा ओपन करते हैं, जी, है ना, कि इनसे कभी शुरू से बात नहीं होती थी या बीच में बातचीत रुक गई। नहीं स्टार्टिंग में भी बात होती थी तो दे नेवर ट्राई टू लिसन। वो सिर्फ चुपचाप जो मैंने कहा उसे सुना, अच्छा ठीक है, और लेकिन करना वही जो उन्हें समझ में आया, नो डिस्कशन। तो ठीक है उस, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि जब इन्होंने सुनना ही नहीं तो आई स्टार्ट अवॉइडिंग। मैंने कहा भाई ठीक हाँ, है, रुक जाइए जैसा रुक तुम्हें जाइए, ठीक उसमें लगे कहिए, तुम वैसे करो। इसको थोड़ा आराम आराम से देखते हैं, है ना। तो जब बात हो जी, रही थी तो हमने सिर्फ जी, कार्य को लेकर बात किया या व्यवहार को लेकर भी बात किया, हमने समझ और भाव को लेकर भी बात किया। अगर ये हमने नहीं काम किया। नहीं नॉर्मल, मतलब मेरी नेचर ही ऐसी है कि मैं जुड़ के काम करना पसंद करती हूँ। अगर वर्क प्लेस पे भी कि हम लोग जुड़ेंगे तो हम काम की बात भी आराम से कर पाएंगे। तो नॉर्मल बातें बहुत की, थोड़ी नहीं बहुत। नहीं, इसको रुक जाइए, तो थोड़ा और इसको ओपन जी, करिए। जी, इसको अब जाके जी, जी, देखिए कि जब उनसे बातचीत हो रही थी तो हमने क्या जी, कार्य को केंद्र में रख के बात किया या सही समझ सही हाँ, भाव के अर्थ में भी बात किया। रुक जाइए, सही समझ सही हाँ, भाव के अर्थ में भी बात किया। अगर नहीं नहीं, किया तो वो संबंध स्थापित नहीं हो पाया उनके साथ। और बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकता है हो गई जिससे अगला व्यक्ति जी, आहत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके नीचे काम करने वाला कोई व्यक्ति है, उन्होंने छुट्टी मांगी, आपने जी, छुट्टी कैंसिल कर दी, फॉर एग्जाम्पल, जी, है ना, क्योंकि कोई आवश्यक काम था। बट वो इस बात को नहीं देख पाया, तो इस बात से आहत है, आपके प्रति रिएक्शन में है कि आपने तो उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी, उसका काम बिगड़ गया, है ना, और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। तो उसके अंदर आपके हम्म, प्रति प्रतिक्रिया बन गई। जी, और ऐसे कई अवसर आए होंगे। तो हमने कई बार ऐसा हुआ कि संवाद नहीं किया, निर्णय लिया, जिससे अगला व्यक्ति प्रभावित हो गया। अब अगला व्यक्ति के अंदर विरोध बन गया है, तो विरोध के भाव के साथ वो सुन नहीं रहा। और हम इस पर बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे कि कहीं ना कहीं हमारे लिए गए निर्णयों से व्यक्ति मेरे प्रति प्रतिक्रिया में आ गया है। अब हम सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया को देख रहे हैं, बट उसके पीछे जो कारण है उसको नहीं देख पा रहे।
तो मैं आपको इन हम्म, एसेंस कहूंगा कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, एक एक व्यक्ति को सॉर्ट आउट करने में आपको समय लग जाएगा फिर। तो जी अगर आपने वर्क प्लेस पे, आप लखनऊ में है, जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, हाँ, नहीं नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी में हूँ एक। कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी? अरे भैया आप जानते हैं, बहुत अच्छे से रहने दीजिए अभी नाम। ये हो जाएगा कि कहाँ विरोध है, अभी उसको रहने देते हैं यहाँ पर, मैं अलग अच्छा से बात कर अच्छा। लूंगी इसके लिए आपसे। अच्छा हाँ, तो मैं तो कहूंगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप प्लान करिए, सेल्फ फंडेड 3 डेज का वर्कशॉप। तो ऐसी बहुत सारी जी गांठें खुलेंगी, क्योंकि होता ये है जी कि हम लोग वर्क प्लेस पे आते हैं, अभी घर की अपनी समस्याएं रहती हैं, उस जी पूरे बैगेज के साथ हम वर्क प्लेस पे आते हैं और वहां फिर नई समस्याएं। तो व्यक्ति जी व्यक्ति जी के बीच संवाद ही नहीं हो पाता, कभी हम मौलिक मुद्दों पे बात ही नहीं कर पाते। तो हर समय काम की हम्म, बातें होती हैं, है ना, और काम को लेकर जो शिकायतें होती हैं उसको लेकर उधेड़ बुन चलता रहता है, खींचातानी चलती रहती है, उसकी प्रतिक्रियाएं हम्म, चलती रहती हैं, प्रतिक्रियाओं के कारण संघर्ष चलता रहता है। तो पूरे समय हम दुखी भी हो जाते हैं और दुखी भी कर देते हैं दूसरों को। बट वैसे अगर हम वर्क प्लेस पे ऐसे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें तो एक होलिस्टिक सोल्यूशन निकल कर आता है, और आपको आगे के कार्यक्रम भी दिखाई देते हैं। ये हम लोगों ने हर जगह पाया है, कॉलेजेस में तो पाया ही है, क्योंकि लोग अपने जी ढंग से आपको देखते हैं। अगर आप इन बातों को स्वयं में वैल्यू कर पाती हैं, आप भले इस बात को न रखें, स्वयं वैल्यू कर जी पाती हैं, इसको प्लेसमेंट देती हैं और फिर लोगों से शेयर करती हैं, इसके लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं, तो लोगों को ये तो दिखने लगता है कि कुछ सार्थक भी सोचती हैं। सार्थक ही सोचती हैं, कोई जरूरी ना हो, पर सार्थक भी सोचती हैं, तब दिख पाते हैं लोग। तो फिर जी उसके साथ एक आश्वस्ति बनती है और लोगों के साथ बातचीत करने का एक नया आधार बनता है। ये भी एक दिन में बन जाए कोई जरूरी नहीं है, जी। तो एक नया आधार बनता है, क्योंकि इस आधार के साथ आप ओके आगे संवाद कर पाते हैं। ओके भैया। जी, इसको ओके आप प्लान करें, तो एक जी होलिस्टिक भैया। सोल्यूशन निकलेगा। जी मैं बात करती हूँ आपसे इस बारे में। थैंक यू। जी, बढ़िया दीदी। दीदी थैंक नेक्स्ट यू। स्लाइड लगा लेते हैं। नमस्ते भैया। जी नमस्ते चंद्रशेखर जी। हाँ भैया, 2 दिन पहले आप एक बात रखे थे भैया, वो पूछना था, मगर मैं 2 दिन एक्सप्लोर भी किया भैया। ये है कि ज्यादातर हमारा दुख वैसा तो सुखी रहने का तो इनेट नेचर है हमारा सेल्फ का भैया। तो ज्यादा जी ज्यादा से प्रॉब्लम जो भी है सेल्फ से ही हमको ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा आपने कहा था भैया फर्स्ट डेट को। हाँ, इसका मतलब हम सही समझ और सही फीलिंग्स नहीं रखने की वजह से ही हो रहा है। और क्या। मतलब इनेट नेचर तो सुखी रहने का ही है हम सेल्फ का। जी तो भी ज्यादा प्रॉब्लम सेल्फ से ही हो रहा हाँ, है ना। है। तो ये भी दिखाई देगा आपको कि दुख का स्रोत भी भीतर है। हाँ वो तो है। अगर सुख का स्रोत भीतर नहीं है तो दुख का स्रोत भी भीतर है, ये भी दिखाई देगा आपको। क्योंकि बाहर जो घटनाएं हो रही है तो हो रही है, उनको हम अपने ढंग से इंटरप्रेट करके दुखी होते रहते हैं। तो स्रोत तो भीतर ही है ना। बहुत ठीक से पेश हाँ किया जाए, चाहे सुख हो या दुख हो। हाँ वही भैया और वही। जो बाहर मैं निर्णय भी ले रहा हूँ ना, बाहर हाँ जो मैं भैया। परस्परता भी निभा रहा हूँ लोगों के साथ, वो सारा जो भीतर उसके आधार पे ही कर रहा हूँ। तो भीतर जब तक ठीक से काम नहीं होगा, मैं बाहर में भी अपने लिए नई नई समस्याएं पैदा करता रहूंगा। हम्म। जैसे मान लीजिए किसी के साथ मित्रता का संबंध का निर्वाह ही करना है, ठीक। हाँ भैया। भीतर मान्यता बनी हुई है कि भाई मित्र तो वो होते हैं जो आपके हर, है ना, बात को सुने, माने, आपके अनुसार चले। हाँ और हमने उसके आधार पर मित्रता बना ली, ठीक। अब हमारे में समझ नहीं है तो हमने गलत मान्यताओं को भी, जो मानने वाले लोग हैं उनके साथ मित्रता बना ली। अब किसी मौके ज्यादा पे भैया। है ना, उनके साथ निर्वाह ठीक नहीं हो पा रहा तो हम कहते हैं ये मित्र ठीक नहीं है। बट अल्टीमेटली हम्म, मित्र का चयन तो हम ही ने किया, अपनी ही मान्यता के आधार पर किया। तो स्रोत तो भीतर ही हुआ ना। तो सुख हाँ का भैया। स्रोत भी भीतर ही है, दुख का स्रोत भी भीतर ही है। बाहर तो सिर्फ घटनाएं हो रही है। हाँ 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 सही है भैया, सही है। थैंक यू भैया, थैंक बढ़िया भैया।
तो ये देख लें कि इस पूरी प्रक्रिया को जो हमने बात की सही समझ के लिए, जांच परख के लिए, हमको सह स्वीकार यही प्रक्रिया है, अपने अधिकार पर जांच परख की प्रक्रिया, जिससे कि आप समझ सुनिश्चित कर सकें, या क्या करना है क्या नहीं करना है ना, डू डोंट्स की कोई भाषा बोली जाए, ऐसी कोई प्रक्रिया, कोई मॉरल स्टोरी सुना दिया जाए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट आपके सामने रख दिया जाए, ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ उपदेश दे दिया जाए, ऐसी प्रक्रिया ठीक है। तो इसको अपने आप में देख लें, मुझे लगता है हम सभी इस बात पर सेटल्ड होंगे ही, है ना। बट किसी को अगर कुछ इसमें प्रश्न बनते हैं, कोई शंका है तो रख सकते हैं। तो जांच परख की प्रक्रिया ठीक है या मानने की प्रक्रिया ठीक है? बढ़िया, मुझे लगता है हम सभी इसमें सेटल्ड हैं, इसको पूछने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसमें नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दीदी। तो समझ इंश्योर होता है, इस पूरी प्रक्रिया से समझ इंश्योर होता है। अब ये सुख की बात हो रही है ना, समृद्धि की बात हो रही है, इसको जरा समझते हैं कि सुख है क्या। तो अपने आप में हम देखें, जिसको हम सुख कह रहे हैं वो अल्टीमेटली स्टेट क्या है, वो हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं, किस चीज को पाने में लगे हुए हैं, किस चीज को बनाए रखने में लगे हुए हैं, चाहते क्या है। तो अब देखेंगे तो पाएंगे कि अल्टीमेटली हम हारमोनी चाहते हैं, संगीत चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं। तो जिस भी स्थिति परिस्थिति में होते हैं, अगर उसमें संगीत होता है, व्यवस्था होती है, तो ऐसा जीना मुझे सहज रूप से स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में होना सुख है, यानी संगीत में व्यवस्था में होना सुख है। इनफैक्ट जिसको हम फेवरेबल कंडीशन भी कह रहे हैं, जैसे हम बाहर सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें देखेंगे तो हमें बाहर में हारमोनी लगती है, वो उस समय तो वही हारमोनी लगती है। तो एसेंशियली हम हारमोनी चाहते हैं, संगीत चाहते हैं। तो बाहर हारमोनी ढूंढने के बजाय स्वयं में हारमोनी हो जाए, तो फिर इस हारमोनी को बाहर शेयर करेंगे। अगर स्वयं में हारमोनी सुनिश्चित नहीं हुआ है तो बाहर से जुटाने का प्रयास करेंगे। और हारमोनी का संगीत का मतलब भी क्या हुआ, जैसे मैं अपने आप में विचार कर रहा हूँ, मेरे विचारों में संगीत हो। ऐसा नहीं कि विचार करते करते इतना उलझ गए कि सिर में दर्द हो गया। मेरे अंदर कोई भाव बना हुआ है ना, भाव में संगीत हो, और भाव में संगीत होगा जब वो सहज रूप से स्वीकार होगा। मैं जिन लोग के साथ रह रहा हूँ, उनके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ, उनके प्रति मेरा जो भाव है उसमें संगीत हो। मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, है ना, तो शेष प्रकृति के साथ जो इंटरेक्शन में कर रहा हूँ, उसके प्रति जो मेरे अंदर भाव है उसमें संगीत हो। तो अगर बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि एसेंशियली जिन भी अवसरों पे जीते हैं, उसमें जिस भाव के साथ मैं परस्परता का निर्वाह करता हूँ, उस भाव में संगीत है कि नहीं, वही तय करता है कि मेरे में सुख है कि नहीं। तो कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें अंतर्विरोध है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज रूप से स्वीकार नहीं होता। फिर भी बाध्य हो जाते हैं जीने के लिए। परिवार है, परिवार में संबंध स्पष्ट नहीं है, बट जीना तो है ही, है ना, इन्हीं चार छेलों के बीच में रहना है। अब वहां विरोध बना हुआ है, विरोध से मेरे अंदर अंतर विरोध खड़ा हो जा रहा है। अब मुझे भाव स्पष्ट नहीं है, अब क्या करें, है ना। तो जीना उनके साथ ही है, अंतर विरोध चलता रहता है। किसी को कहा दुख, इसमें बाध्य हो गए हम। तभी आप पाएंगे कि हम समझ के अभाव में, हारमोनी की व्यवस्था की समझ के अभाव में, अपने आप में अभी हारमोनी को इंश्योर नहीं कर पाते, तो अंतर विरोध में चले जाते हैं। तो अभी दो तरह से काम करते रहते हैं। अंतर विरोध में चले गए, दुख हुआ, फिर इस अंतर विरोध से निकलने के लिए कुछ उपक्रम बनाया, तो रिलेटिवली आराम मिला। बट जो योजना कार्यक्रम बनाया, वो भी समझ के आधार पे नहीं बनाया, तो उसको जब बढ़ाते गए तो फिर दुख मिला। तो फिर उसके या तो बदलने जाते हैं या फिर अपने अंदर देखते हैं। तो अभी हम बाएं हिस्से पे ठीक से काम नहीं कर पाते, जो हारमोनी की समझ विकसित करने की बात है। हम डिसहारमोनी में होते हैं या डिसहारमोनी से स्केप करते रहते हैं, और जो स्केप के रूट्स हम निकालते हैं,
कई बार रूट्स भी ऐसे हो जाते हैं एक समय के बाद जो हमारे फिर से डिसहार्मनी क्रिएट करते हैं हमारे अंदर, तो फिर हम उनको अवॉइड करते रहते हैं। और हमारा है ना ये इस तरह का निकलना बचना चलना है ना लगा रहता है। तो या तो हम डिसहार्मनी में होते हैं या डिसहार्मनी से स्केप कर रहे होते हैं। करने का काम ये है कि हम हार्मनी को समझ लें, व्यवस्था को समझ लें, उसके लिए समय लगाएं, ताकि डिसहार्मनी में जाना फिर उससे बचने के लिए बाहर आना, फिर उसमें जाना फिर उससे बचने के लिए बाहर आना, इस पूरे है ना चक्र से हम बाहर आ जाए और हमको चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे, हार्मनी में बने रहे। फिर जब ये आपके अंदर स्वीकृति बनेगी कि अल्टीमेटली मुझे हार्मनी में जीना है, तो फिर हार्मनी को आप और समझेंगे, समझने पे काम करेंगे, समय लगाएंगे। जी, ये बात ठीक है। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। निधि जी का हैंड रेज। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। भैया मेरा प्रश्न था कि आपने जैसे बोला कि मित्र भी हमने अपनी मान्यताओं के अनुसार बना लिए जी और अब हमारे अंदर उन मित्रों को लेकर अंतर्विरोध भी है, फिर ऐसी स्थिति में क्या हमें उन मित्रों को छोड़ देना चाहिए या फिर हम उनके साथ सामंजस्य कैसे बैठाएं कि हम मेरे अंदर का अंतर्विरोध खत्म हो? वही तो उसका एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन तो यह है कि उन मित्रों को आप कहें कि वो समझने के कार्यक्रम में लगे, वर्कशॉप अटेंड करें, समझे। जो लोग उसमें गति कर पाएंगे उनके साथ आपका ठीक ठीक निर्वाह होने लगेगा। जो लोग गति नहीं कर पाएंगे वो खुद ही कहेंगे कि भाई हमें रहने दो। तो हाँ अगर सर, हमने कुछ ऐसे संबंध भी बना लिए। जी वो जो है जिनसे मेरी मित्रता है वो वर्कशॉप तो शायद वो नहीं अटेंड कर सकते, फिर उनके साथ हम क्या करें? तो आप तो अपना कार्यक्रम निश्चित कर दीजिए कि आपको तो समझना है, हारमोनी को समझना है और जी है ना उसमें जीना है। तो इस आधार पे आपके नए संबंध भी बनेंगे, नए मित्र भी बनेंगे। और जो पुराने मित्र हैं वो जितना इसमें रुचि ले पाएंगे, जितना इसमें अपने आप को लगा पाएंगे, वो जुड़ेंगे। जो कम जुड़ेंगे उनके प्रति हमारे अंदर संबंध का भाव बना रहेगा, बट हम अपना समय उसी के अनुसार लगाएंगे उनके साथ। जी भैया। और वो भी आराम पाते हैं इससे, मतलब उनको दिख जाता है कि हाँ ये व्यक्ति कुछ सार्थक काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आपसे अब उस तरह के लूज टॉक ना करें, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले कर रहे थे तो नहीं ऐसा हो भैया, सकता है जिस तरह से अभी जैसे हम मैं मित्रता का निर्वाह करते हैं तो उसमें जी अभी हम यही दो काम करते रहते हैं। या तो अनुकूल संवेदना मिलके पाने का प्रयास करते रहते हैं, कुछ खा लिया पी लिया है ना, ये कर लिया, या मिलकर हम कुछ अनुकूल भाव शेयर करने का या पाने का प्रयास करते रहते हैं। तो हम तो कम से कम उससे बाहर निकला है, ठीक जी है ना। और उनको भी बाहर निकलने में सहयोग कर पाते हैं, इसके लिए वो भी कृतज्ञ हो पाते हैं। जितने भी लोग बाहर आ जाते हैं उससे वो भी कृतज्ञ हो पाते हैं और बाकी लोग भी देख पाते हैं कि आप कुछ सार्थक कर रहे हैं तो आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। बात मतलब भैया पहले खुद को सुधारें। अपने ऊपर काम करना तो फोकल पॉइंट है ही। जी, अपने ऊपर काम उसके करना बाद तो जी फिर चीजें खुद से थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लग जाएंगी। जी जी भैया ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। बिल्कुल। तो अपने ऊपर धन्यवाद। तो काम करना ही है, सतत रूप से अपने ऊपर काम करना है। जी भैया, धन्यवाद भैया। तो इसको हम लोग देखें है ना, अभी हम जिसे सुख कहते हैं वह क्या है, वो यही है या इससे भिन्न है। यही मुझे सहज रूप से स्वीकार होता है या कुछ अन्यथा। अभी हम सुख को देखने का प्रयास करते हैं या दुख से बचने का प्रयास करते हैं। अभी हमको सुख की क्लैरिटी हो गई है या हम दुख को पहचानते हैं और उसे निकलने में लगे रहते हैं। बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि उसका ज्यादातर समय हम दुख से बचने का प्रयास करते रहते हैं, समस्याओं से बाहर आने का प्रयास करते रहते हैं, डिसहार्मनी से स्केप करने का प्रयास करते रहते हैं। हार्मनी को समझने के लिए, हार्मनी में बने रहने के लिए हमारा प्रयास बहुत थोड़ा हो पाता है, उसी को बढ़ाने की जरूरत है। ये हार्मनी की क्लैरिटी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए,
ये स्टेट बन जाए मेरा, बजाय ऐसे कि हम डिसहार्मनी में जाए फिर उससे निकल कर बाहर आए, फिर डिसहार्मनी में जाए फिर निकल कर बाहर आए। कि नहीं, इसको हम लोग अपने आप में देखें। इसके थोड़ी सी बात आगे ले चलते हैं, कल इस पे विस्तार से बात करेंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा। दीदी स्लाइड आगे बढ़ा दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी भैया, आपकी आवाज आ रही जी। है। तो नटशेल में कहा जाती इतनी बात है कि संगीत में व्यवस्था में जीना सुख है, अंतर विरोध में अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना ये दुख है। इसको आज हम ऑब्जर्व करें अपने अंदर, है ना। अल्टीमेटली हम दुख से बचने का प्रयास करते हैं। दिन भर में कितना समय हम दुख से बचने में लगाते हैं, कितना समय हम हार्मनी को समझकर हार्मनी में होने का प्रयास करते हैं। इसको इवैल्यूएट करें अपने आप में, जांचें परखें, है ना। इस पर हम लोग कल और बात करेंगे। जी, समय होने वाला है तो अभी बात इतनी करके रोक लेते हैं। जी, कुछ अनाउंसमेंट है तो कर सकते हैं दीदी। जी भैया, आज की पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी का भी इस चर्चा में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। लीव करने से पहले चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है जो ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी एफटीपीस होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग, तो आप अपने इंस्टीट्यूट में इन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप सब कर सके। कल सोमवार से 6 जनवरी से इंग्लिश में स्टूडेंट वर्कशॉप शुरू हो रही है इवनिंग टाइम 6 to 9 PM में ऑनलाइन मोड में, जिसकी रजिस्ट्रेशंस फुल हो चुकी हैं, लेकिन हम सभी एज अ पैनलिस्ट और एज अ वॉलंटियर इसमें काम कर सकते हैं। और 12th बैच की जो मॉर्निंग एक्सरसाइजेस हैं उनके यूट्यूब के लिंक भी अवेलेबल हैं, तो हम उन्हें वापस भी सुन सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की लिंक अभी भी ओपन है। अभी चौथा दिन है, पर हम सभी देख पा रहे हैं कि ये सारी चर्चा बहुत ही उपयोगी है, तो हम अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक अगर हमने ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि इससे